Transnations, Translations. The theme for this year will see a vibrant mix of speakers talk about varied aspects of this topic, interspersed with performances, your interactions, bringing forth yet again another dimension of the Indian languages, a treasure trove we just don't get tired of exploring. To inaugurate Samanvay 2014, please join me in welcoming to the stage to light the inaugural lamp the Director of India Habitat Center, Shri Rakesh Kakkarji, noted poet and cultural figure and our chief guest, Shri Ashok Vajpayee ji, former Director, IHC, and Founder Director Samanvay, Shri Raj Librahan ji, Kumar Vikram, Senior Editor, National Book Trust, and MD Delhi Press, Shri Paresh Nath. Thank you so much. I would now like to request the Creative Director for Samanvay, Giriraj Kiradu, to please come and address the audience. Thank you. पिछले 3 साल से मेरी आदत थी कि मैं एक आध सेंटेंस बोल के भाग जाता था। इस बार मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बोलना पड़ेगा। तो बाकी ये फेस्टिवल कैसे शुरू हुआ और इसकी क्या थीम्स रही हैं और किन लोगों ने इसको अब तक बनाने में मदद की है, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से सत्यानंद निरुपम बात करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस साल की जो थीम हमने चुनी है वो एक तरह से पिछले 3 साल की थीम का एक विस्तार है। पिछले साल ही जैसे हमने लैंग्वेज कनेक्शंस पे बात की थी, और वहाँ से सिलसिला निकला कि हम अनुवाद और उसके मार्फत अलग अलग तरह की सरहदों पे बात कर सकते हैं। तो इस बार की थीम जो है वो उन तमाम सरहदों की बात करने की कोशिश करेगी जो कुछ हमने बनाई हैं, कुछ दूसरों ने बनाई हैं, मिलजुल के बनाई हैं, और उनको भाषा और अनुवाद के सहारे हम कैसे मिटाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये कुल मिला के इस साल की थीम है मोटे मोटे तौर पर। इसके आसपास हमने करीब 21 सत्र संयोजित किए हैं जिनमें 90 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें डिस्कशंस होंगे, रीडिंग्स होंगी, शाम की म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस होंगी, और पूरा ब्रोशर नहीं पढ़ना चाहिए इस वक्त क्योंकि वो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि एक ऐसे स्पेस की ज़रूरत थी और ये स्पेस आप सब लोगों की मदद से बन पाया। इसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, खासकर वो लोग जो यहाँ इस समय मौजूद रहते हैं रोज़ शाम को। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये सोचा था कि जब मैं आज की शाम की बात शुरू करूँगा तो एक मारक वाक्य से शुरू करूँगा, ए ब्रूटली काइंड ऑफ क्रशिंग सेंटेंस, एंड दैट वाज व्हेन आई वाज यंग। So when I was young, I thought that literature would teach me many things, and it disappointed me in a way because it did not teach me many things. It rather taught me two things only over the last 20 years or so. So the first thing it taught me was that what we call love, especially in those days when I was young, is often a semiotic scandal. That is something which is not love, and we prefer to call it love because we don't know any other word for it. And literature teaches you that if you are able to do that, if you are able to understand that it's basically a semiotic scandal, only then you are able to love properly. And then for a long time, it did not teach me anything. That's the kind of disturbance that literature and teaching often, when they get together, kind of create. Anyways, so the second thing that it decided to teach me was that there comes a point when at the end of the day, everything comes down to this, that how well do we love, or can we love people who may not, do not, cannot, and given what we do to them, should not love us. So literature may kind of, at times, avoid confronting what happens at the end of the day, but what happens at the end of the day will always keep defining and questioning literature itself. So at the end of the day, this is what has been my learning, and I think Samanvay in 4 years has been an exercise in trying to learn this second lesson, that people who may not, cannot, do not, and given what we do to them, should not love us. We should be able to love them well. And thank you so much for coming, and I hand it over to Nirupam for the rest. Thank you so much.
मुझे लगता है मुक्तिबोध से अगर कुछ उधार लेकर कहूँ, साहित्य में होना अपनी ही परम उपलब्धियों की खोज है, लगातार खोज है, एक अनवरत खोज है। वे परम उपलब्धियाँ सबके लिए अपने अपने तरह की हो सकती हैं, लेकिन वह परम उपलब्धि शायद मनुष्य से बेहतर मनुष्य होना या अपने मनुष्य होने को पहचानना, लगातार इसकी एक कोशिश है। और शायद हम जब तक होते हैं तब तक वह कोशिश चलती ही रहती है, क्योंकि एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में भी अपने आप को पहचान लेना एक आत्मसंभवा की तरह से ही है, जिसकी खोज, जिसकी तलाश निरंतर मुक्तिबोध करते रहे या मुक्तिबोध जैसे कवि हमें यह बता गए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह सिर्फ एक खोज है। आज जब हम चौथे साल में समन्वय के इस नए संस्करण का आगाज़ करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं श्री राज लिब्राहन जी को, जो सामने हमारे बैठे हैं, जो इस फेस्टिवल के संकल्पनाकार हैं, जिनके नेतृत्व में हमने 3 साल समन्वय के सफलतापूर्वक किए, उनको प्रणाम करता हूँ कि इस भारतीय भाषाओं के इकलौते लिटरेचर फेस्टिवल की संकल्पना उनके मन मस्तिष्क में उभरी। और श्री राकेश कक्कर जी, जो सीढ़ियों पर हैं उन्होंने बखूबी इस नेतृत्व को चौथे साल में संभाला है और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने इस बार की पूरी तैयारी की है और समन्वय को आगे से आगे ले जाने के लिए, अच्छे से अच्छा करने के लिए मिस्टर कक्कर ने लगातार हमारा हौसला बढ़ाया है, हमें हिम्मत दी है। तैयारी में हर संभव मदद उन्होंने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रखी। मेरे साथी क्रिएटिव डायरेक्टर गिरिराज किराडू, उनके बारे में अगर मैं कुछ भी कहता हूँ, समन्वय के लिए उनके जो भी प्रयास है उसके बारे में मैं कुछ भी कहता हूँ, तो वह अपने बारे में कहने जैसा होगा। गिरिराज, में सही हूँ? नहीं कहना ठीक है। और जो भी आमंत्रित लेखक हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, जो दूर दूर से आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, हम पड़ोसी मुल्कों के तमिल, बांग्ला, नेपाली के लेखकों को पहली बार अपने मंच पर आमंत्रित कर सके हैं, इसके लिए हम बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं, बहुत गर्व का अनुभव कर रहे हैं। यह एक अद्भुत क्षण होगा जब बांग्ला के भारतीय लेखक और बांग्लादेशी लेखक दोनों एक साथ बैठकर एक मंच पर बांग्ला साहित्य के बारे में बात करेंगे, तमिल साहित्य के बारे में बात करेंगे। नेपाल, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका और भारत के 3 मुल्कों के कवि एक साथ कविता पढ़ेंगे, अपनी अपनी भाषा को प्रस्तुत करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। सबके आवभगत में हमने अपनी तरफ से हर संभव सावधानी बरतने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं कोई असावधानी, कोई चूक हो गई हो या हो जाए, माफ़ भले कर दीजिएगा, हमें सचेत करने से न चूकिएगा। हम लोग सुधार करते करते, कोशिश करते करते इस आयोजन को यहाँ तक ले आए हैं। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, हम लोग यह मान कर चल रहे हैं। बस हमारी कोशिश यह है कि भारतीय भाषाओं और बोलियों के साहित्य को इस मंच पर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जाए, उनके महत्व पर, उनके भविष्य पर, उनके वर्तमान पर व्यवस्थित ढंग से बात हो और हमारे लेखक युवा पीढ़ी से जुड़ें, युवा हमारे समय के लेखकों से जुड़ें। इस बार समन्वय, इंडिया हैबिटेट सेंटर और नेशनल बुक ट्रस्ट के सह आयोजन में पिछली बार की तरह ही हो रहा है। दिल्ली प्रेस हमारा पहले साल से ही महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है, पार्टनर है। उनका सहयोग इस साल भी जारी है। REC हमारे नए पार्टनर आए हैं, उन्होंने बहुत उदारता से हमारी मदद की। कुछ नए एसोसिएट पार्टनर्स समन्वय से जुड़े हैं,
IIFCL PTC इंडिया मिस्टर राजीव मल्होत्रा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PTC इस हमारे बीच मौजूद हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ONGC, DD भारती, इन सब लोगों ने बहुत सौजन्यतापूर्वक समन्वय से सहयोग किया है। प्रतिलिपि बुक्स और राजकमल प्रकाशन समूह समन्वय भारतीय भाषा महोत्सव के चौथे संस्करण के कंटेंट पार्टनर हैं। आर्टिस्ट थिएटर सोसाइटी, प्रथम बुक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हमारे आउटरीच पार्टनर हैं। बांग्लादेश एम्बेसी ने बांग्लादेश से हमारे महत्वपूर्ण सम्मानित लेखकों को बुलाने में हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही, उनकी मदद बहुत बड़ी रही। हम सब के बहुत बहुत आभारी हैं। उन सब के सहयोग के बिना और समन्वय की टीम में इंडिया हैबिटेट सेंटर की टीम और साथ में बाहर से बहुत सारे जुड़े लोग और तमाम हमारे युवा साथी जो दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के हैं, पत्रकार साथी, ये सब लोग अगर समन्वय के लिए अपना अपना नैतिक समर्थन इस तरह से नहीं देते, शारीरिक सहयोग नहीं करते, तो यह सब कुछ तैयारी जो जिस रूप में आपको दिख रही है वह शायद संभव नहीं हो पाती। हम सब जो मंच पर दिख रहे हैं वह कुछ नहीं है। जो मंच के नीचे हैं, जो मंच के पीछे हैं, वही समन्वय के असली लोग हैं जो आप सब के लिए यह सब कुछ उपलब्ध करा सके हैं। आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत आदर, नमस्कार। मैं सौम्या को आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। We now move towards our inaugural lecture. कल जब शब्द नहीं होगा और ना ही ये आदमी, तब थोड़ी सी जगह होगी, खाली सी, पर अनदेखी, और एक और आदमी उसे रौंदता हुआ चला जाएगा। ये कुछ पंक्तियां हैं अशोक वाजपेयी जी की सड़क पर एक आदमी से। अशोक वाजपेयी जी को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं। अ हिंदी पोएट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, एडिटर एंड कल्चरल एक्टिविस्ट, ही इज़ अ मेजर कल्चरल फिगर ऑफ इंडिया। दयावती सम्मान, कबीर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित वाजपेयी जी ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। He has raised his voice for the autonomy of literature and arts as against contemporary tyrannies of ideologies, markets, and fundamentalism. It is an honor for us to have Ashok Vajpayee ji address us in our inaugural lecture. Please note that we will have a question and answer session after the lecture. Please join me in welcoming Ashok Vajpayee ji. एक ऐसे ही साहित्य समारोह में मैं लखनऊ में था और वहाँ कहा गया कि एक वाक्य में आपको कुछ कहना है। सौभाग्य से यहाँ ये नहीं कहा गया है, मुझे कई वाक्य कहने की इजाज़त है। तो वहाँ मैंने ये कहा था कि लिटरेचर सेलिब्रेट्स लाइफ ऑल द टाइम, सम टाइम life should also celebrate literature. And I think that's how we should look at these literature festival. मेरा आज का विषय है हमारा समय और साहित्य। कुछ बातें हमारे समय के बारे में और कुछ बातें साहित्य के बारे में। एक लेखक के रूप में भारत में कम से कम मेरा मनोबल इतना गिरा रहता है कि मैं पानी पी पी कर उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ। इसकी कोई जैविक ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ अपना मनोबल बढ़ाने का एक यत्न है। हमारा समय संभवतः मनुष्य के इतिहास में सबसे हिंसक समय है और हिंसा इतनी फैल गई है, वो युद्धों की हिंसा, सिविल युद्धों की हिंसा, सशक्त बगावतों की हिंसा, क्रांति की हिंसा, आतंकवाद की हिंसा, मानवीय संबंधों में हिंसा, समाज में हिंसा, दलितों पर हिंसा, स्त्रियों पर हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हिंसा, मीडिया में हिंसा, फैशन में हिंसा, मनोरंजन में हिंसा, खेलकूद में हिंसा, धर्मों में हिंसा। तो ये एक
विचित्र समय है जिसमें हिंसा लगभग आकाश की तरह हम पर छाई हुई है। ऐसा कोई मुकाम ही नहीं है जो हिंसा से बचा हो। दूसरी बात यह है कि हमसे बार बार ये कहा जाता है, पहले मनुष्य तरह तरह के विकल्प सोचता था, उनको लेकर निराश या आशावान होता था, उनको अमल में लाने की कोशिश करता था। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि अब जितने महान सपने थे वो सब तो इतिहास के घूरे पर पड़े हुए हैं। अब सपने देखने का वक्त नहीं है, और अगर सपने देखना ही हो तो ज़्यादातर हम लोग बहुत ही टुच्चे सपने देखते हैं। ये सपना कि दो कमरे का मकान है तो 3 का हो जाए, छोटी गाड़ी है तो बड़ी हो जाए, हमारा जो बॉस है जल्दी रिटायर हो जाए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के टुच्चे सपने देखने का समय है। असल में तो ये बौनों के उन्नयन का समय है। हाँ, लेकिन बहरहाल अब समय है सो है। तीसरा, हमारे दिमाग में भी और हमारे घरों में भी एक नई गोदामियत ने घर कर लिया है। अटाला बना हुआ है हमारे घर अटाला बने हुए हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा बस नहीं है। पहले हम मानते थे कि दुनिया विचारों से बदली जाती है, अब हम मानने लगे हैं कि दुनिया चीज़ों से बदली जाती है। तो जितनी चीज़ें जिसके पास होंगी वो उतना ही धनी या सफल होगा। एक अद्भुत संवाद रति पैदा हुई है। एक तो ये चल बोला मिल गया है, तो बेवजह लोग बात करते रहते हैं। इससे अधिक अभद्र आविष्कार मनुष्य ने किया ही नहीं है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आपके पास कोई फोन आ गया तो आप उससे बात करने लगे। मैं जो आपके सामने सशरीर बैठा हुआ हूं, उसकी आपको कोई चिंता नहीं, वो ससरा कोई कहां है। और दिलचस्प बात यह है कि हालांकि हम सुबह से शाम तक बात कर रहे हैं, हमारे पास शब्द कम हो रहे हैं। अब तो शब्दों के हिज्जे करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आधा तो वो फोन ही कर देता है और आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। PRBLM लिख दीजिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एक तरफ शब्दों का टोटा और दूसरी तरफ अदम्य संवाद रति। फिर हम कहने को तो एक दूसरे से अलग हैं, बट देयर इज ए tyranny of uniformity. More and more of us are looking more and more like each other. More and more of us are behaving like each other. More and more of us are eating, enjoying, entertaining, listening, everything like each other. संसार जो अपनी बहुलता, विपुलता से, विविधता से इतना रंगा रंग था, वो धीरे धीरे एक सा होता जाता है। फिर अब हमको अकेले होने से बड़ी घबराहट होती। तो मैं जहाँ रहता हूँ, मैं एक हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट है हमारा, हमारे फ्लैट के सामने एक बैंक के मैनेजर रहते हैं। हालांकि इसमें एक बैंक की वो है भूमिका, और बहुत ही भले आदमी हैं। असल में दुनिया भले आदमियों ने ज़्यादा बिगाड़ी है, क्योंकि उनका पता ही नहीं होता कि कब वो गड़बड़ी कर जाएंगे। पर बहरहाल वो भले आदमी हैं। जब अपने मकान में आते हैं तो इसका पता मुझे उनके दरवाजे खुलने की आवाज़ से नहीं लगता। वो आते ही साथ शायद दौड़कर अपने टेलीविज़न को ऑन कर देते हैं, तो एक चीत्कार जैसी पैदा होती है, और फिर उनको अपने पड़ोसी पर दया आती है तो वो थोड़ा उसको कम कर देते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि दिन भर का थका हारा बैंक मैनेजर आता है तो थोड़ी देर तो अकेला रहे, लेकिन
हम सब अकेलेपन से घबराते हैं और उसको भरने के लिए, उससे बचने के लिए हमने अनेक साधन पैदा कर रखे। तो हमसे हमारा अकेलापन धीरे धीरे गायब हो रहा है। और मित्रों, दुनिया और साहित्य और कलाएं, महान कलाएं और महान साहित्य उन लोगों ने पैदा किया जो अकेले पड़ जाने से घबराते नहीं थे, जिनको हर वक्त भजन कीर्तन मंडली की जरूरत नहीं होती थी। और अब सवाल पूछना भी, हमारी जैसी इस समय स्थिति है भारत में, अगर आपने सवाल पूछा या आलोचना की तो या तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, या आप इस तरह के कुछ हो जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। कोई ये भी कहेगा कि आपको देश निकाला दे दिया जाए। अरे, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार प्रश्न पूछना है, और अल्लाह ताला और ईश्वर तक से हमने प्रश्न पूछे हैं अपनी परंपरा में। तो तुम कौन से दुम छल्ले हो जो थोड़ी देर के लिए आए हो और तुमसे हम प्रश्न नहीं पूछेंगे? ये आलोचना वृत्ति धीरे धीरे समझौता वृत्ति में बदल रही है। हम आलोचना से धीरे धीरे हट रहे हैं कि कौन झंझट में पड़े, खामखा कोई आएगा, कभी हमारे खिलाफ कुछ हो गया, वगैरह वगैरह। ये झूठ की दिग्विजय का समय है। जो जितना आत्मविश्वास से झूठ बोले वो हमारा नायक है। पहले झूठ बोलने वाला खलनायक होता था, लेकिन अब, और झूठ बोलने वाले कौन है? कोई हम जैसे दुम छल्ले थोड़ी हैं। झूठ बोलने वाला, इराक पर हमले की याद करिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने झूठ बोला, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला कि उस मुल्क में सद्दाम हुसैन के निज़ाम में weapons for mass destruction are being created, and therefore they are a great threat to the peace of the world, and therefore Iraq must be attacked. And after that attack, for many years they occupied the country, completely destroyed its culture, its ethos, whatever, and they could not find a single weapon of mass destruction. So, here is the time when lies triumph, and triumph globally. हमारे यहाँ का है ना, सत्यमेव जयते। वो बेचारा रात को सिसकता होगा जब कोई नहीं देख रहा होगा उसको, तो वो आप्तवाक्य सिसकता होगा कि हे भगवान, मैं कहाँ जीत रहा हूं, मैं तो हर पल हार रहा हूं। फिर हमारे यूनेस्को की रिपोर्ट है कि हर दिन एक भाषा मर रही है। एक नया मध्य वर्ग पैदा हुआ है भारत में, बड़ा चिकना चुपड़ा, बहुत ही महत्वाकांक्षी, और हर कुछ कर गुजरने को तैयार, जिसकी एक विशेषता ये है कि वो अपनी मातृभाषाओं से निरंतर दूर जाता हुआ मध्य वर्ग है। मेरा एक पोता है, जब वो 5 बरस का था तो मैं उस हाउसिंग सोसाइटी में जिसमें मैं रहता हूँ, तो उसका थोड़े दिन के लिए अध्यक्ष था। तो एक दिन सुबह बीवियों का एक गोल उधर से आ रहा था और मैं भी अपनी सुबह की सैर पर था। तो उन्होंने कहा, वाजपेयी साहब, हम कई दिनों से आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो मैं समझा कोई शिकायत करेंगी कि वो लिफ्ट में हॉर्न नहीं बजता या अलार्म नहीं बजता या वगैरह वगैरह, कि पानी चूता रहता है इत्यादि। उन्होंने कहा कि हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपका पोता इस सोसाइटी में सबसे अच्छी हिंदी बोलता है। हमारे कहा, बड़ी भी, क्या ज़माना आया है, एक बच्चे को अपनी मातृभाषा ठीक से बोलने के लिए बधाई दी जाएगी। अभी ये तो साधारण बात है। हम 60 साल से अपनी मातृभाषा में, 70 साल से अपनी मातृभाषा में लिख रहे हैं। हमें तो किसी ने इसलिए बधाई नहीं दी कि वाह कमाल कर रहे हैं आप, हिंदी में लिख रहे हैं।
अरे हिंदी में लिख रहे हैं तो कोई हिंदी पे एहसान कर रहे हैं। पर मातृभाषाओं से दूर जाता हुआ मध्यवर्गीय समाज विकसित हो रहा है। और हालांकि बाबा आबा बहुत पैदा हो गए, और दुनिया भर के बाबा हैं, कुछ बंद भी होते रहते हैं सौभाग्य से, हाँ, अपने बलात्कारी आचरण इत्यादि द्वारा, लेकिन बहुत सारे उबराए रहते हैं और उनका बड़ा पता नहीं कौन कौन से जागरण होते रहते हैं और हजारों लोग उनको सुनते रहते हैं। जबकि असल बात यह है कि हमारा समय अध्यात्म से दूर जाता समय है। इसको कोई अध्यात्म से अर्थ क्या? अर्थ ये कि हम एक विशाल सच्चाई का हिस्सा हैं। दूसरी बात ये कि ये विशाल सच्चाई में हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, यानी पौधे, पक्षी, नदियां, पर्वत, हम, समुद्र, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरी बात ये कि हम सब एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। हम नदियों के लिए भी जिम्मेदार हैं और पर्वतों के लिए भी जिम्मेदार हैं और तोतों गिलहरियों के लिए भी जिम्मेदार हैं, और वो भी हमारे लिए जिम्मेदार हैं। शायद वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने से दूर भाग रहे हैं। और ये कि जब एक चीज में कुछ खलल पड़ता है, एक चीज में कुछ गड़बड़ी होती है, तो एक सारा अंतर गुम्फन जो है एक बार कांप उठता है। यानी अगर मुझे कोई दुख होता है तो कहीं किसी आकाश गंगा में एक तारा है जिसकी आंखों में आंसू आता है। ये अध्यात्म है। इसका कोई संबंध इससे नहीं है कि आप ईश्वर में विश्वास करें कि न करें, इत्यादि इत्यादि। अब इसके बरक्स बेचारा साहित्य क्या कर सकता है, और साहित्य की स्थिति क्या है? एक तो हिंसा का मूल क्या है? हिंसा का मूल यह है कि हम दूसरों का क्या करें। एक बड़ा भारी प्रश्न, ये मनुष्य के सामाजिक इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है कि हम दूसरों का क्या करें। ये दूसरे हमारे धार्मिक दूसरे, जाति दूसरे, वैचारिक दूसरे, सांस्कृतिक दूसरे, राजनैतिक दूसरे, इत्यादि इत्यादि। इन दूसरों का क्या करें? और साहित्य का एक बहुत ही छोटा सा सबक ये है कि असल में हम और वे एक ही हैं, कि हम वही हैं और वे भी हम हैं। ये जो हम और वे का द्वैत है, इसको साहित्य ध्वस्त करता है। आप दूसरों का क्या करें, ये सवाल साहित्य में बदलकर हो जाता है कि आप अपना क्या करें। क्योंकि ये जो द्वैत हमने बना रखा है और जो समाज में और राजनीति में और इत्यादि इत्यादि में बहुत आगे फैलाया जाता है, वो असल में अवास्तविक है, झूठा है, उसकी कोई वास्तविक स्थिति नहीं है। दूसरी बात, मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण सपना देखना है। हमारी आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी हैं, वो सपना देखने के लिए भी बनी है। हम सच्चाई भी देखते हैं और सच्चाई का विकल्प भी देखते हैं। जो हमें दिया हुआ है उसको हम मन मसोस कर मान लें, ऐसी मानवीय बाध्यता नहीं है। हम विकल्प सोचते हैं, हम सपना देखते हैं कि ये जो दी हुई सच्चाई है, इससे अलग भी सच्चाई संभव है। और इस दिए हुए को अटल मानने की, अटल न मानने की शक्ति का पुनर्वास साहित्य करता है। साहित्य आपको अपने समय में बिंधे हुए रहकर भी सपना देखने की हिम्मत देता है और भरोसा देता है कि ऐसा सपना देखा जा सकता है कि जो दी हुई सच्चाई है वही एकमात्र संभव सच्चाई नहीं है। तीसरी बात, विचारों की इस समय बड़ी अवज्ञा है, बड़ी
विचार विचार क्या होता है, जबकि मित्रों दुनिया का के इतिहास का बहुत बड़ा कारक तत्व विचार रहे हैं। विचार के बल पर ही दुनिया में परिवर्तन हुए। तो साहित्य आपको स्वयं विचार करने की शक्ति का पुनर्वास करता है, और ये नहीं कहता कि आप उस विचारधारा को फॉलो करो या उसको उसके पीछे जाओ। साहित्य आपसे कहता है कि आप, यानी जो बुद्ध ने कहा था अप्पदीपो भव, तुम स्वयं अपने चिराग हो, तुम स्वयं अपने दीपक हो, स्वयं विचार करो। तीसरी बात, ये मैं तीसरा इसलिए कहूंगा कि आपको बहुत लंबा ना लगे। हाँ, ये कहूंगा 17वीं बात पर कहूंगा तीसरी बात। हाँ, तो इस भ्रम में ना रहिएगा। और साहित्य का शब्दों से, यानी शब्दों का सच्चाई से जो नाता है, उसको साहित्य पुनर्नवा करता है। शब्द बने थे, कभी बने होंगे, क्या हुआ उनका, फिर भूल गए लोग, वो सिर्फ अब शब्दकोश में हैं, लेकिन उन शब्दों को जीवन देता है साहित्य। हम में से ज़्यादातर लोग 2-3 हज़ार शब्दों से काम चलाते हैं, और साहित्य में भी दुर्भाग्य से 10,000 शब्दों से काम चल जाता है, लेकिन 1 लाख शब्द हैं मसलन हिंदी अकेली में। और अगर आप जो अनुवाद आपके इस समारोह की थीम है, अनुवाद ना होता तो 20वीं शताब्दी संभव ही नहीं थी, यानी उस अर्थ में संभव नहीं थी, भौतिक रूप से तो संभव होती। ऑक्टेवियो पाज ने एक बार कहा था कि 20वीं शताब्दी में सिर्फ भाषाई अनुवाद भर नहीं हुए, जीवन शैलियों के, भोजन के, पहरावे के, सोचने विचारने के ढंगों के भी अनुवाद हुए। तो ये जो अनुवाद है, ये आपके भाषा के परिसर को, उसके भूगोल को और चौड़ा करता है। जो आप नहीं जानते, जो आपकी भाषा में नहीं संभव हुआ है, वो कहीं संभव हुआ है भाषा में, तो वो आपकी भाषा में आ सकता है, और फिर वो आपकी भाषा में गृहस्थ बन जाता है। यानी साहित्य या तो जीवन से आलोकित भाषा है, और या भाषा से आलोकित जीवन है। जो जीवन है इसको भी वो बीतता जाता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें एक दबी छुपी इच्छा बनी रहती है कि हम बीत भले जाएं, हमें याद किया जाए। ये जीवन भी चाहता है कि उसे याद किया जाए, और जीवन को याद करने का एक प्रमुख माध्यम साहित्य है, क्योंकि साहित्य स्मृति पर और स्मृति को बचाने पर केंद्रित होता है। ये ठीक है कि साहित्य एक अल्पसंख्यक मामला है, हालांकि अल्पसंख्यकता के संदर्भ में कभी साहित्य का जिक्र नहीं होता। मतलब और तरह के लोग अल्पसंख्यक हैं हमारे यहाँ, अब बेचारे साहित्य को अल्पसंख्यक नहीं माना जाता, जबकि असली अल्पसंख्यक तो यही है। उसको लिखने वाले भी कम और पढ़ने वाले भी कम। अल्पसंख्यक, ये जो उसकी अल्पसंख्यकता है, ये जो उसका हाशिए पर रहना है, ये एक तरह से उसका सौभाग्य भी है, क्योंकि वो तथाकथित बहुसंख्यकता का प्रतिपक्ष है। उसको वो हाशिए से देखता और हाशिए से केंद्र पर टिप्पणी करता है, और कई बार हाशिए से देखने वाला बीचों बीच बैठे देखने वाले से बेहतर देखता है। तो साहित्य एक अर्थ में हमेशा ही प्रतिपक्ष है, और कम से कम इस समय भारत में जो स्थिति है जिसमें प्रतिपक्ष ससरा बचा ही नहीं है करीब करीब, उसमें तो साहित्य एकमात्र संभव प्रतिपक्ष है। 3 चीजों के विरुद्ध साहित्य एक अथक सत्याग्रह है। सरलीकरण के विरुद्ध,
सामान्यीकरण के विरुद्ध और समग्रीकरण के विरुद्ध। इन तीनों चीजों के विरुद्ध साहित्य सत्याग्रह करता है कि सबको आप एक थैली का चट्टा बट्टा नहीं मान सकते, कि व्यक्ति हैं, चीजें हैं, दृश्य हैं जिनकी अलग अलग इयत्ता है। साहित्य बिना संसार से अनुराग किए संभव ही नहीं। जो साहित्य संसार से अनुराग न करे उसको और बहुत सारे काम है, बम बनाए और लोगों को मारे और जो भी करना है जो करे। You know, he had no business in being literature, because literature is born out of a deep and abiding love and lure of the world. You may still take a view that you opt out and look at the world from a point of view where the world appears to you be totally false and baseless and unpardonable. You can take that as stance. But after having loved passionately, intensely, and deeply the world as it is, the problem is that the world as it is and the world as it could be, there is this tension which informs literature all the time. And literature gives you this opportunity to be in your time and to be liberated from your time. You can walk into any time. You can be taken into any time. Because all of us, human beings, Homo sapiens, have both tendencies. We have a notion of time, but we also have a notion of the timeless. Birds and dogs don't remember that they were birds and dogs in 17th century. I mean, at least I think they don't. Maybe I'm wrong. I'm wrong in so many things that I could be wrong in even this simple fact. But we remember that in the 17th century they were human beings. We remember that in the 10th century they were human beings. We remember that in the primordial times they were human beings, etc., etc. Now, one of the things give moral authority and moral validation, in a sense, to literature is the fact that literature is one of the very few, perhaps the only discipline, which, while trying to speak candidly, imaginatively, its own truth, also doubts it. A politician cannot doubt whatever he has said. A theologian cannot doubt. Perhaps the scientist cannot doubt. But we can doubt. हमारे एक कवि ने कहा, मैं सच लिखता हूं, सच लिखकर झूठा करता जाता हूं। अगेन ने कहा तो, and while it dares to speak truth to power, as Edward Said famously said, it also does not allow the smallest truth to go waste. ये भी एक सच है कि एक गिलहरी एक पत्ते को कुतर रही है. Literature will notice this. Perhaps others won't. Should I finish? I mean, 5 minutes. Okay. Oh, 5 minutes. I strongly believe, and because I believe this is because I'm there, that rampart of conscience in our time. Because it gives you a picture where your conscience must be troubled. Now I'm coming to the end. You see, literature has a strange, paradoxical situation. Literature is not politics, but it has political implications. Literature is not, it can't take over morality, but it is a deeply moral act. It cannot turn spiritual, though it has a spiritual, inevitably spiritual dimension. And to do all this, literature has to be primarily literature. That is, it should not
should resist, and it does resist, all good literature resists colonization by ideologies, by whoever, by power, but whatever. Rabindranath once said that anywhere in the world, if there is an illumination, the light reaches me. And you can say that we have come to a time, and Roland Barthes said this beautifully, literature is no longer defending its ornaments. It is defending its very skin. Every time it appears that we are the last ones, but luckily we are not. मैं लाहौर में था तो एक पेशावर से कोई एक शायर आए थे और उन्होंने शायरों के बारे में कहा कि हम थोड़े थोड़े हैं, हम कम कम होते हैं. So we are not too many. We are in short supply, even genetically, perhaps. But we still believe, perhaps incredibly and without any basis, that we matter. We meaning literature matters. We may not. We are, she will, writers, but literature matters because to man, conscience, memory, language, words matter, and they continue to matter. Thank you very much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अब हम अपने श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि अगर उनके कोई सवाल हैं तो अभी पूछ लें. Are there any questions in the audience? एक ही सवाल है, इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया आपने? हम लोग तो सुन रहे थे. इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? सुन रहे थे सब. अब समय की सीमा है और अगर 20 मिनट में आप अपनी बात नहीं कह सकते तो 2 घंटे भी न कह पाएंगे. So my question is, when you suggested that literature is, sir, I'm here, right here, Yeah. right in front of you. Yeah. Right. Sir, my question is that when you said that literature is born only out of true love towards the society, do you diminish the purity of the feeling of hatred towards society or the social structure? Because there has been a lot of literature and a lot of work which has come out of the total feeling of condemnation or hatred towards the whole existence. So do you diminish the importance of that? No, I don't. We are one of the few aesthetic traditions in the world where the macabre was even accepted as a rasa. Vibhats is a ras. One. The second thing, when I said that literature is born out of a love of the world, not of the society. The world is a much larger phenomena, a construct, whereas society and most literature has been extremely critical of the social fabric. And we have every reason in this country to be driven to a point of hatred for what our social structure has been all about. We have a greatly liberating metaphysics, and we have a very constructive social structure. This is one of the major Indian paradoxes. So one is not saying that you should give up. Actually, hatred is also a form of love, if you like. Because, we believe in those kinds of things. But surely, when I'm saying that you want an alternative world, when you want an alternative reality, surely you must be dissatisfied with what is given to you. And most of us are dissatisfied anyway. So you're right. I'm not saying that. Yes. Sir, I'm here, Dr. Jagdish Chandra Batra. Yes. My question is about your violence, that we are living in the world of violence. And I think the violence has produced the maximum good literature, including our epics Ramayana and Mahabharata. And because of the violence, because this young lady from Pakistan and Kailash Satyarthi have won the Nobel Peace Prize in spite of the violence.
So violence has also a role to play to give birth to the good literature. Well, uh, but you can't say that violence produced great literature. Violence is a part of the human existence, and that violence has been depicted, explored, described by great literature and even ordinary literature. But violence where you are not willing to admit the existence or not allow the existence of the other, that's the kind of violence which cannot possibly, it will be arid, it cannot produce, and it has not produced great literature. अच्छा, okay, fine. हाँ जी सर, तो आपने ज़बान के बारे में बात की और कहा कि मध्यम वर्ग ज़बान, मादरी ज़बान से दूर भाग रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि ज़बानें वही ज़िंदा रहती हैं जिसका कोई फ़ायदा हो, आर्थिक लाभ हो, जिससे फ़ायदा हो। तो हम भावुक होकर कह सकते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा से लगाव होना चाहिए और बोलना चाहिए, लेकिन वो ज़बान ज़िंदा ही नहीं रहेगी क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा अगर कोई आर्थिक लाभ ना हो। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे हम निकलें, इसको कैसे हम सोचें? देखिए, अव्वल तो आपकी बात में ये बद्धमूल धारणा है कि भारतीय भाषाओं से कोई आर्थिक लाभ संभव नहीं है। हाँ? अव्वल तो ये सही नहीं है। हम जैसे लोग और हम जैसे बहुत सारे और लोग जो भाषाओं में ही काम करते हैं, हमें आर्थिक लाभ का कोई इतना अभाव नहीं है जितना आपको लगता होगा। हमारे फटीचर वेशभूषा से एक बात। दूसरी बात, आर्थिक लाभ एक चीज़ है, आपको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। आपकी ज़िंदगी सघन हो, समृद्ध हो, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उनमें भाषा की भूमिका है। आपको अपनी याददाश्त चाहिए, आपको अपना एक बड़े परिवार का होने का एहसास चाहिए। ये सब आपको, सिर्फ आर्थिक लाभ नहीं है। ये आर्थिक लाभ ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी नहीं। I had a question. Just like humans have a sense of time and timelessness, does literature and someone like you who's part of that, do you, when you are writing or producing it, do you also have a sense of time and timelessness at the same time? Well, Yeah. you see, those, I mean, the problem of literature as you write it and the problem of literature as you read it are two different problems. When you write it, there are many people who say they have the audience in mind. And those people who have everything in mind before they write will end up being bad writers. Because writing is a way of discovering. You do not know what is going to happen. You might start with something, but you will end up with something which is totally different. I mean, the famous example is Milton's Paradise Lost. It says in the body of the poem itself, to justify ways of God to men. And what it lands up is by justifying ways of Satan to God. The Satan is more powerful than God, poor God. So poor God shows rather weakly in the massive image that Milton had. Now, Milton was a proper Christian. He couldn't have done this deliberately. But this is what literature is all about. You land up in doing things. So nobody will start writing thinking, I am going to connect time and timeless. No, that doesn't happen. But while you are exploring time, while you are excavating time through your writing, you'll inevitably come across the rock of the timeless. And there should be the thrill of discovery. Good evening, sir. So my question is that nowadays we don't find a good Hindi literature. If we find it in Premchand or it's very far. तो मेरा सवाल ये है कि आज के समय में ऐसा क्यों नहीं है? Is there a decline of the good writers or the good readers? Well, अव्वल तो
प्रेमचंद को मरे हुए भी अब गोल ने बहुत विस्तार किया है और 20, 25, 30 बड़े लेखकों के नाम बताए जा सकते हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। साहित्य में सौभाग्य से कोई प्रगति नहीं होती। 400 बरस बाद भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो शेक्सपियर से बेहतर लिख रहा है। अधिक से अधिक वो यही दावा कर सकता है कि वो शेक्सपियर से अलग लिख रहा है। और हमको शेक्सपियर भी चाहिए, लेकिन शेक्सपियर से अलग भी चाहिए। हमको प्रेमचंद भी चाहिए, लेकिन हमको फणीश्वरनाथ रेणु और हरजय प्रसाद द्विवेदी और गजानन माधव मुक्तिबोध और नागार्जुन और बहुत सारे लोग हैं जो चाहिए। रघुवीर सहाय चाहिए, श्रीकांत वर्मा चाहिए, यहाँ बैठी हैं गीतांजलि श्री, वो भी चाहिए। तो ये सब ये आप तक नहीं पहुंच पाते, तो इसलिए थोड़ी कोशिश, मेरा आग्रह है, आपको भी करनी चाहिए। सिर्फ प्रेमचंद के सहारे न बैठे रहिए। No, this was not my question. Sir, my question is that nowadays if we find in a bookstore, we usually find the English literature or English books in Indian, by the Indian authors. Not by the Indian authors, they are not writing like youngsters. Why they are not writing the Hindi literature? This is my question. No, I mean, that's a pity that they don't, and that there are very few bookshops. In fact, मैं ये बहुत सारे हिंदी के प्रकाशकों से कहता रहा हूँ कि बैठ के एक पुस्तकों की दुकानें खोलने का अभियान चलाओ। 100 पुस्तकों की दुकानें खोलो, उसको फ्रेंचाइज दे दो, एक ही नाम हो, सब प्रकाशक आ जाएं। वहाँ लोगों को किताबें जब दिखाई नहीं देंगी तब वो पढ़ेंगे कैसे? तो ये एक बिल्कुल अलग मसला है। ये साहित्य पर फैसला नहीं है, ये साहित्य की पहुंच की जो संस्थाएं हैं उनकी विफलता का आख्यान है। हम अपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे श्री अशोक वाजपेयी जी को। आपका बहुत 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 धन्यवाद। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तीसरा समन्वय भाषा सम्मान श्री अशोक वाजपेयी जी को दिया जाएगा।